सौरभ मेरे को पूछ रहे हो कि सबको पूछ रहे हो एक साथ? आई एम गुड। हाउ आर यू गाइस डूइंग? पढ़ाई चालू की कि नहीं अभी तक? नहीं किया अभी तक? कब करना है फिर? कब सोचा है? थोड़ा थोड़ा ओके। यार कर दो अगर स्टार्ट नहीं किया तो। इट्स हाई टाइम नाउ। दिसंबर भी खत्म हो गया है। नाउ यू आर गोइंग टू रीच व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। सो जितना लेट करोगे उतना ज्यादा डिफिकल्ट होते जाएगा। ओके तो जल्दी से स्टार्ट कर दो एंड अच्छे से मेहनत करो। Ajita, this session in this session I am going to share about CET. I have not given CAT, so I won't be able to help also about अगर कोई आपको डाउट हो। Okay, chalo, I think there are a fair number of participants now, fair number of students now, so we can begin. So hi guys, this is Keval Ajmeri here again for another session. Now, those of you who have been attending my session, you know कि मेरा idea है every session में I'll cover one particular topic. I'll share my experience मैंने क्या क्या किया and तुम लोग के जो भी doubts होंगे I'll try to address them. अगर मेरे को कोई सोचता है कोई अच्छा solution तो I'll provide you. Otherwise, at least I'll share कि मैं होता तो क्या करता वो time पे. Okay. And again, before I begin with my experience, I would just like to remind you, for every person there will be unique strategy. Okay, so ऐसे blindly follow मत करना हम लोगों को किसी का भी वीडियो देख रहे हो तो, but try to see कि what is working for you the best and try to adapt to that strategy. Okay, तो थोड़ा थोड़ा testing करते रहना अलग अलग strategies जो तुमको suit करता है over a period of time, you will be able to finalize it. तो इतना बहुत ज़्यादा difficult नहीं है, but you have to begin at one point. Okay. So till now I have shared कि मैं mock कैसे approach करता था. I have talked about abstract also, and today I want to be talking about verbal. And this is basically because a lot of people were asking me about verbal only during my other sessions. So I thought कि आज जल्दी कर देते हैं तो आप लोग को अगर लेट हो गया तो प्रिपरेशंस में इशू ना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए एटलीस्ट. सो I'll address all your doubts. Okay, तो पहले मैं थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ मेरा एक्सपीरियंस एज इन अबाउट वर्बल हाउ आई अप्रोच्ड इट एंड बेस्ड ऑन दैट अगर डाउट सॉल्व हो जाते तो ठीक. उसके बाद जो डाउट होंगे ना वो मैं एड्रेस कर दूंगा आपके. ऑलराइट. सो स्टार्टिंग में सिर्फ सुन लो कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ. um, सो as you remember कि मैंने जब मॉक स्टार्ट किया था at that time I was not able to attempt verbal. Okay, this can happen with any section for you when you are starting with the mocks. Now more so ever because you are going to be having only 120 minutes. So within 120 minutes attempting 200 questions is going to be a very big task. So there will be a time when you will see कि बहुत सारे maybe एक section या more than a section you are going to miss out in the beginning, and this is bound to happen. At that time you have to understand कि mock को कैसे approach किया जाए, which I shared in the first session कि whenever you are approaching any mock, have a particular strategy. तो हर एक section को तुम ना पहले तो timing दे देना and stay true to that timing. जैसे 120 minutes में तुमने divide कर दिया, what I would do is maybe 10-15 minutes I would give for logic, then 30-30 for quants and verbal. This is just for the first mock. एक idea आने के लिए कि कौन सा section है मेरा क्या हालत है. Okay. उसके बाद I would tune it. So if I think कि 30 minutes for verbal is too much, तो मैं 30 की जगह 20 कर दूंगा and quants को maybe 10 minutes कर दूंगा. So ऐसे एक strategy लेके चालू करो and then you can tune it according to your accuracy, according to your speed and all those factors. All right. So for me, I was not able to attempt verbal in the beginning. So what I did, I started from verbal. Not because कि मेरे को main exam में verbal से ही start करना था, but because कि मैं verbal जब mock में attempt करता हूँ तो कैसे जाता है. Outside mock when I am analyzing the mock and I am solving the entire verbal, उसका importance ना थोड़ा सा कम हो जाता है क्योंकि वो environment नहीं है तभी. Mock वाला environment एक time limit वाला environment नहीं है. तभी I can take 2 hours for entire verbal and I can solve. Right. So that is why I wanted to have an experience कि mock देने के time में verbal में कैसा perform करता हूँ.
So I started by verbal to just to see, and I realized कि RC was very much time consuming. See, verbal में कुछ भी टॉपिक ऐसे डिफिकल्ट नहीं है. एक्चुअली देखा जाए तो सीईटी के पूरे टॉपिक्स में कोई डिफिकल्ट नहीं होता. इट इज जस्ट कि तुमको वो टाइम में सॉल्व करना है ना, वहां पर डिफिकल्टी आता है. सो अगेन सेम लॉजिक कि तुमको 2 हफ्ता दे दिया तो हर एक जन का 200 में से 200 आ जाएगा. दो हफ्ता नहीं है हमारे पास 2 घंटे होने वाले हैं. सो विद इन 2 आवर्स यू हैव टू सॉल्व. So I personally found that RC में I am going to waste a lot of time in just reading. I tried everything. समझता भी था पैराग्राफ, ऐसा नहीं था कि आउट ऑफ द वर्ल्ड है वो, कोई ग्रीक एंड लैटिन तो नहीं है, इंग्लिश ही है. So it was easy to understand, but the time I would spend in reading the entire RC and understanding and then answering एक एक questions, hardly 5-6 questions होते थे या 6-8 क्वेश्चन हो जाते थे कभी कभी. I was wasting a lot of time, I realized, because I was not able to attempt other grammar के questions, vocabulary वाले questions. Okay. So I thought let me skip RC and then देखते हैं कि आगे में कैसा performance आता है. So at first I was blindly skipping RC and आगे की चीजों में perform कर रहा था. Okay, I was solving the other parts and I was scoring decent amount of marks. Now आगे वाला मैं थोड़ा बाद में cover करता हूँ, पहले RC पे ही रहता हूँ. So when I started scoring decent amount of marks in the other part ना, तो मैंने realize किया okay, I I might try to see कि RC में कैसे टाइप के questions होते हैं. So while analyzing I realized कि RC में ना हर एक question difficult नहीं होता. So थोड़ा सा एक I'm going to give you an example अभी, तो just stay with it. एक पूरा बड़ा सा RC है. अज्यूम कि वो फाइनेंस रिलेटेड है. जीडीपी ऐसे ऐसे कुछ तो दिख रहा है हमको, थोड़े पैसे का मतलब मनी के क्या बोलते हैं नंबर्स दिख रहे हैं, एंड थोड़ा सा रिजर्व बैंक एंड ऐसे वैसे सब कुछ कुछ वर्ड्स दिख रहे हैं हमको. तो आई जस्ट रियलाइज कि ओके कुछ तो फाइनेंस रिलेटेड है, पता नहीं क्या है. एंड मैं रीड तो नहीं कर रहा हूँ, बट मैं क्या करूंगा ना, वाइल वाइल स्किपिंग, मतलब आरसी तो मेरे को स्किप करना था, बट बिफोर स्किपिंग आई विल जस्ट हैव अ ग्लांस एट द क्वेश्चन. तो एक नजर में ना ऐसे देख लेने का, 2-3 सेकंड में ना एक खाली क्वेश्चन ऐसे देख लेने का, क्या है ये. इज द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द आरसी, मतलब ऐसे कोई स्टोरी में से कुछ पूछा है क्या कि इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया. बिकॉज दैट यू कैन आंसर like 90% of the times you'll be able to answer only when you read RC properly. ऐसे टाइप के क्वेश्चन दिखे ना, मैं उसको गेस करके आगे निकलता हूँ. ओके. फिर एक टाइप के क्वेश्चन होते हैं जिसमें समटाइम्स टू रीड द आरसी, थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा कॉमन सेंस, थोड़ा सा जनरल नॉलेज, दैट विल हेल्प यू टू आंसर. ओके. सो जैसे अगर हिस्ट्री के ऊपर कोई आरसी है, एंड हिस्ट्री के ऊपर कोई मतलब एकदम बेसिक कुछ तो क्वेश्चन है कि 1942 में क्या हुआ था, ऐसे समथिंग लाइक दैट. तो आई आई रिमेम्बर थोड़ा सा कि शायद क्विट इंडिया मूवमेंट था 1942 का. पार्डन मी इफ आई एम रॉन्ग, बट जस्ट फॉर एग्जांपल अगर वो हुआ था, तो अगर पूछा है कि क्विट इंडिया मूवमेंट कब हुआ है एंड ऑप्शंस दिए हैं, तो आइडियली दे आर एक्सपेक्टिंग कि तुम आरसी पढ़ो. आरसी में कहीं तो लिखा था कि इन 1942 व्हेन द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्टेड. तो अगर तुम्हारे पास जनरल नॉलेज है इतना, तो तुम बिना आरसी पढ़े भी आंसर कर सकते हो. नॉट सेइंग दैट ऑल द क्वेश्चंस आर लाइक दिस, बट देयर माइट बी वन और टू क्वेश्चन इन ईच आरसी मे बी. ओके. सो बिफोर स्किपिंग जस्ट हैव अ ग्लैंस एट दैट क्वेश्चन. अगर आरसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है एंड तुम अगर आरसी स्किप कर रहे हो तो छोड़ दो, मतलब गेस कर दो. अगर थोड़ा सा जनरल नॉलेज टाइप का क्वेश्चन है, कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, तो ट्राई एंड आंसर इट. ओके, 5-10 सेकंड्स में अगर होता है तो आंसर कर दो उसको. नेक्स्ट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन होता है जिसमें दे आर आस्किंग सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड इजी थिंग्स व्हिच फॉर व्हिच यू डोंट इवन नीड टू रीड आरसी एट ऑल. ओके. यू मतलब ऐसे एक ग्लैंस में ऐसे दिख जाता है क्वेश्चन में कि एक वर्ड दिया है बोल्ड में एंड 4 वर्ड्स उसके नीचे दिए हुए हैं. तो माइंड तो तुम्हारा क्लिक होगा ना कि इट माइट बी सिनोनिम्स और एंटोनिम्स और समथिंग लाइक दैट. So for those questions, you don't always need to read RC, and you can answer it directly. If at all you अगर क्वेश्चन होगा ना कि जिसमें आरसी रीड करना चाहिए, तो कभी अगर लक अच्छा हुआ तो वो लोग ना वो वर्ड आरसी में बोल्ड करके देते हैं. तो यू डोंट इवन नीड टू सर्च फॉर दैट वर्ड, यू विल बी एबल टू फाइंड इट डायरेक्टली. एंड वो सेंटेंस पढ़ के देखने का अगर मीनिंग नहीं समझ रहा, एंड देन सिलेक्ट योर आंसर. ओके. अगेन ये दिस इज नॉट 1 2 3 दैट आई एम सेइंग कि ऐसा ही होता है हमेशा. इसके अराउंड कुछ ना कुछ हो सकता है. ओके, पॉसिबल कि ऐसा कुछ भी ना है, बट ट्राई टू ट्राई टू फोकस ऑन द क्वेश्चन एंड डोंट डायरेक्टली स्किप इट. अगर इजी क्वेश्चन है आरसी का तो अटेम्प्ट करो. सो व्हाट दिस डज इज, आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस, if you are going to solve at least 5,
तो इसका मतलब हुआ कि 20 के 20 स्किप नहीं किए तुमने, 5 तो अटेम्प्ट किए उसमें से। तो बाय बाय डिफ़ॉल्ट व्हिच विल बी बेनिफिशियल टू यू। ओके? सो आई होप इतना इतना तुम लोग को समझा कि मैं क्या करता था। दिस इज़ व्हाट आई वाज़ डूइंग। एंड आई विल टेल यू अ बिट ऑफ दिस थिंग। जिन्होंने भी सीईटी दिया था इन 2020, इफ यू वर इन माय बैच एटलीस्ट, तो फोर्थ में ना क्या हुआ था, आरसी वाज नॉट टिपिकल आरसी। दे आस्क्ड क्लोज टेस्ट इन आरसी। सो क्लोज टेस्ट, इफ यू रिमेंबर, जिसमें बीच बीच के वर्ड्स मिसिंग होते हैं, दे गिव यू ऑप्शंस। ओके? सो व्हाट यू कैन डू इन व्हाट आई हैड टू डू इज, आरसी के अगर मैं स्किप कर देता हर एक क्वेश्चन ब्लाइंडली कि नहीं मैं आरसी सॉल्व ही नहीं करता, स्किप करो स्किप करो स्किप करो, तो मैं पूरा क्लोज टेस्ट ही छोड़ देता शायद। बिकॉज मैंने काफी क्वेश्चन स्किप कर दिया और फिर मैं आगे वंडर करता कि यार क्लोज तो पूछा ही नहीं इन्होंने। दैट इज व्हाई ऑलवेज पे अटेंशन टू ईच एंड एवरी क्वेश्चन। इट माइट बी इजी, हो सकता है कि यू हैव नॉट एट ऑल स्टडीड दैट टॉपिक, बट ऑन दैट डे यू फाइंड कि अरे ये तो बहुत इजी लग रहा है, मतलब तुम्हारे पास दिमाग तो है ही ना, तो सॉल्व तो कर ही सकते हो। So it might happen that you can solve those questions in your exam. So don't skip blindly. At least read and then skip if you want. Okay? This is what I did. And फिर आता है कि नॉन आरसी सेक्शन में. So in non RC section, most of you will be requiring practice only. So if you ask me कि grammar कैसे improve होता है, आपने कैसे किया था ऐसे कुछ, so let me tell you थोड़ा सा honestly that my basic grammar was pretty good since the beginning. I, however, improved my grammar just by looking at the questions. मतलब मैं जब analyze करता था, I was understanding कि इसमें क्या नया चीज पूछा है। जैसे most of you might be comfortable with articles, a and the, ये सब most of you might be comfortable with it, right? So was I. ऐसे छोटा छोटा ग्रामर वगैरह मेरे को बहुत अच्छे से आता था, but I realized that, while studying for CET, the difference between and among. I always use between among, बचपन से ऐसे यूज कर ही रहे हर जगह पर, बट आई रियलाइज द डिफरेंस कि दो लोग होते हैं ना तो बिटवीन यूज करने का, मोर देन टू है तो अमोंग यूज करता है। ओके? सो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स आई लर्नड। इट वाज नॉट कि मेरे को ग्रामर नहीं आ रहा था तो मैं बैठ के पूरा ग्रामर का टेस्ट लिया और ग्रामर का क्लासेस किया, ऐसा कुछ नहीं था मेरे लिए। आई however had to upgrade my skills. Okay? So this is where I work. And honestly, I did not refer to any external material. I simply kept on solving mocks. If I'm if I'm unable to solve a particular question, I would see with that while analyzing the mock, I was solving that particular question and understanding कि इसका आंसर क्या है और क्यों है. Okay? And some things will require regular practice like synonyms, antonyms. Again, I was always having basic English communication skills, so without much difficulty I can communicate in English. But certain jargons, कुछ difficult words होता है जो higher level, which probably I'm never going to use in my life, but just because CET में पूछ रहे थे या exams में पूछते हैं, you have to learn, right, those kind of words. So I learned those words through regular practice. Every day I would make sure that I am learning 5 to 6 new words. Learning was not for me, honestly, it was not necessary that I would remember till the end of my life. Okay? अरे दूसरे दिन भूल जाता था मैं वो words. But all it took was regular practice. Same word I was encountering again and again. So वो एक phase होता है ऐसा कि फिर चीजें याद रहने लग जाती हैं. Okay? So today itself you can start with this synonyms, antonyms. Whenever I came across any word which I did not know about, what I would do is I would go online, Google पे मैं वो word search करता था, and then I will read the synonym of that word, the different words around that word. Google पे तुम करोगे ना तो तुमको एक word का बहुत सारा meaning मिलता है कि उसके similar और कौन से words हैं. Read all of them. एक ना माइंड में एक सॉर्ट ऑफ डायग्राम जैसा बन जाएगा कि ये वर्ड और उसके अराउंड के वर्ड है ये, तो इट हेल्प्स यू एटलीस्ट इन गेसिंग वर्स्ट केस सिनेरियो में. इट विल एटलीस्ट हेल्प यू इन गेसिंग कि ये वर्ड का नजदीक वाला वर्ड शायद ना ये हो सकता है इन ऑप्शंस में से. सो ट्राई टू डू दैट. लर्न vocabulary words, same. I would try to see it from Google. Okay, पहले तो. And दूसरा तुम्हारे पास टॉपिक टेस्ट होगा ना काफी, सिनोनिम्स एंटोनिम्स वाले टॉपिक टेस्ट है, मतलब मेरे पास तो थे लास्ट ईयर. सो व्हाट आई वुड डू इज मैं हर 3-4 दिन में से एक सिनोनिम्स से टेस्ट देता था. आई डिड नॉट वांट टू एग्जॉस्ट ऑल द टेस्ट इन द बिगिनिंग, मतलब जोश जोश में आके सारे के सारे टेस्ट दे दो.
क्योंकि फिर आगे मैं वापस सेम टेस्ट नहीं दे पाता ना। एंड टेस्ट देने के टाइम जो सीखते हैं वो थोड़ा सा अलग लेवल का होता है। तो इट इज लाइक टेस्ट कर रहे हो ना खुद को थोड़ा वो सिचुएशन में। दैट इज व्हाई आई डिड नॉट वांट टू एग्जॉस्ट ऑल द टेस्ट इन द बिगिनिंग। सो व्हाट आई डिड फॉर एवरी 4-5 days आई वाज गिविंग सम सिनोनिम का टेस्ट, कोई एंटोनिम्स का टेस्ट। 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन होते हैं उसमें, नॉट अ लॉट, हार्डली 15-20 मिनट्स का टेस्ट हो जाता है फिर। बट इट हेल्प्ड मी to learn new words, and most of the words were then easy because अगर repeat हो रहे उसमें and then mocks में भी आ जाते हैं वो words, so you sort of connect the dots and then you are able to remember their meanings, their opposites and everything. Okay, so this might help. और एक strategy ये है कि कुछ questions होते हैं ना match the column वाले, जैसे column A दिया है, column B दिया है, column A में sentences, column B में sentences, and you have to match the pairs. Most of the time what happens is every option is very different. मतलब जैसे फर्स्ट वाला अगर ग्लोबल वार्मिंग पे है, दूसरा वाला फाइनेंस के रिलेटेड कुछ हो गया, तीसरा वाला हिस्ट्री पे हो गया, तो इट इज मोस्ट ऑफ द टाइम्स इट इज नॉट रिलेटेड, दैट इज व्हाट आई फाउंड एट लीस्ट. सो व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू रीड ऑप्शन ए, मैं कैसे करता था, ऑप्शन ए रीड किया, कॉलम ए कॉलम बी, कॉलम ए में आई विल रीड फर्स्ट ऑप्शन एंड आई विल सी कि इसका मैचिंग कॉलम बी में कौन सा है, एंड आई विल सी कि ए बी सी, सी मिला मेरे को ऑप्शन इसका मैचिंग, तो 1C पक्का हो गया, आई एम 100% श्योर. आई विल नॉट लुक एट एनी अदर ऑप्शन, आई विल डायरेक्टली गो टू माय आंसर के ऑप्शंस ए बी सी डी ई. मैं देखूंगा कि 1C कौन से ऑप्शन में है. ओके, अगर एक ही ऑप्शन है तो हमको पता चल गया यही हमारा आंसर है, बट वो किस्मत पे पता ना कि एक ही ऑप्शन कैसे हुआ. तो सेकंड चेक कर लेने का कि टू टू अगर डी है तो चेक कर लेने का 2D भी मैच होता है क्या, अगर होता है तो यू डोंट नीड टू रीड एनी अदर ऑप्शन, यू कैन डायरेक्टली मार्क एंड यू कैन गो अहेड. अनदर केस कैन बी 1C दो या तीन ऑप्शंस में है. ओके, 1C, व्हाट यू डू इज देन आगे के ऑप्शंस देखो, टू सॉरी 1C अगर हो गया तो टू क्या है, टू अलग अलग है क्या कि सेम है, अगर टू सेम है तो थ्री देखो, थ्री सेम है कि अलग है, थ्री भी सेम है तो फोर देखो, और फोर हमको पता चला फोर इज ए बी एंड डी अलग अलग है. तो हमको पता है कि नाउ इन ऑर्डर टू फाइंड द करेक्ट आंसर आई जस्ट हैव टू मैच कि फोर का करेक्ट ऑप्शन क्या है. ओके, सो देन आई विल डायरेक्टली लुक कि फोर्थ सेंटेंस क्या है, उसका करेक्ट ऑप्शन ढूंढूंगा बी कॉलम में से एंड मेरा आंसर मिल गया. So these are the kind of tricks that you will develop as and when you keep on solving. Starting में मैं पांच के पांच ऑप्शन, पांच के पांच बी में से भी देखो, हर एक को सिलेक्ट करो, मैच करो, सब करता था. ग्रेजुअली आई रियलाइज्ड कि इसमें ना थोड़ा सा ट्रिक्स यूज कर सकते हैं. ओके, so you can also try these out, and most of the times they are going to save a lot of time क्योंकि मेरे को सारे के सारे options read नहीं करने पड़ेंगे. Okay, तो try करो ऐसी सारी चीजें, and when you are solving तो keep an eye on these types of things. अगर तुम solve करने के time नहीं तो maybe while analyzing the mock you keep an eye कि अगर मैं ऐसा कुछ करता तो, and अगर एक question में चलता है that does not necessarily mean that it will work in all the questions. Okay, so what you have to do is अलग अलग क्वेश्चंस में ट्राई करके देखो कि तुम्हारा ट्रिक चल रहा है कि नहीं. इफ इट इज वर्किंग इन मोस्ट ऑफ देम और बेस्ट केस सिनेरियो इन ऑल ऑफ देम, देन यू कैन गो अहेड विद दैट. ओके, सो ये थोड़े से ऐसे ट्रिक्स हो गए जो मेरे को शेयर करने थे, जो मैं खुद ने सीखे थे एंड आई वाज फॉलोइंग देम इवन इन एग्जाम्स. एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दिस और कुछ तो ऐसे माइंड में है नहीं अबाउट वर्बल. what you can do is you have to read, like I saw कि a few of you ask कि न्यूज़पेपर के अलावा और कैसे improve कर सकते हैं. like Saurabh is also asking, I can see how reading newspaper can improve our verbal portion. um, so my background is engineering. I literally had zero idea about finance. Okay, economics related, finance related मेरे को चीजें नहीं समझती. अभी तो थोड़ी बहुत समझती है, बट वो टाइम पे तो कुछ भी नहीं समझता था. so what happens is if it is an RC, okay, RC तो छोड़ दो, क्लोज टेस्ट भी पकड़ लो. क्लोज टेस्ट इज वेरी स्कोरिंग. ओके, क्योंकि पूरा पैराग्राफ तो है, तुमको एक एक वर्ड सिलेक्ट करना है बस. what happens is if you don't understand the gist of it, if you don't understand the meaning behind that paragraph, you will not be able to select the correct option all the time. हमेशा एकदम इजी वाला नहीं आएगा कि फीलिंग लाइक दिस डैश ऐसा कुछ तो है वहां पर एंड देन बहुत ही इजी वाले ऑप्शंस हैं. ऐसा नहीं हो सकता. many times the options will be very close to each other, एक दूसरे से एकदम सिमिलर होंगे. worst case you will not know the meanings of those options. तो ऐसे टाइम पे क्या करेंगे, तब जाके ना रीडिंग मेरे को हेल्प किया.
आई स्टार्टेड रीडिंग न्यूज़पेपर्स, हिंदुस्तान टाइम्स रीड करता था, इकोनॉमिक टाइम्स भी रीड करता था, ओके? रीडिंग these questions what it does is it will help you understand these jargons. एटलीस्ट मेरे को फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें में हेल्प हुई, इंडस्ट्रीज रिलेटेड हो या कुछ भी, मतलब टू बी ऑनेस्ट यू हैव टू डू दिस एटलीस्ट आफ्टर सीईटी, क्योंकि जब तुम एमबीए के लिए जाओगे तो ये सब चीज़ तुमको इन एंड आउट पता होनी चाहिए। तो it is better that you start before only because it is going to help you in CET preparations. Okay, so 1 hour for reading every day. I did not do कि 4 बजे बैठो 5 बजे तक पढ़ो. I was reading in between. तो कभी आरसी भी मिल गया ना, कुछ इंटरेस्टिंग आरसी दिख गया तो मैं उसको सर्च करूंगा गूगल पे कॉपी पेस्ट करके एंड देखूंगा कि वो कौन से आर्टिकल में से लिया है। सेम थिंग आई वुड डू फॉर क्लोज टेस्ट ऑल्सो। बहुत सारी चीजों में ऐसे किया है मैंने कि कॉपी पेस्ट करके गूगल पे ना आर्टिकल ढूंढता था कि कहाँ से उठाया है ये वाला चीज, एंड वो पूरा आर्टिकल पढ़ो, उसके अराउंड की चीजें पढ़ो। दिस ऑल्सो हेल्प्स। न्यूज तो रीड, मतलब करंट अफेयर्स वगैरह रीड करते हो अगर तुम, तो न्यूज तो यू कैन रीड एवरी हाफ एन आवर, एवरी आवर 2 आवर। जब चाहिए तब 10 रीड करने का, 2-3 आर्टिकल रीड करो, that is also an addition, right? So you don't necessarily need to sit and read for an hour or two. You can do this even in between. तुम अगर ब्रेक ले रहे हो तो read some news articles in between. Okay, I know this is a very boring kind of a break, but अभी तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, तो तुमको अगर अच्छे से स्कोर करना है, तुमको अगर जेबी क्लियर करना है, यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स, तभी जाके थोड़ा इजी हो जाएगा तुम्हारे लिए करना। अदरवाइज यू विल फेस डिफिकल्टीज इन वोकैबुलरीज एंड इन अंडरस्टैंडिंग कि सेंटेंस का मीनिंग क्या है, ये वर्ड का मीनिंग क्या है, राइट? सो ट्राई रीडिंग, इट एक्चुअली हेल्प्स। ऑनेस्टली आई एम नॉट एन एविड रीडर, मैं बुक्स रीड नहीं करता हूँ। मैं, मेरे को बहुत डिफिकल्ट पड़ता है एक पूरा बुक कंप्लीट करने को। ओके, छोटा सा बुक हो तो भी बहुत डिफिकल्ट पड़ता है। लाइक लाइफ में मैंने आज तक शायद 5-6 अच्छे से पढ़े होंगे बुक्स। सो ट्रस्ट मी, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई वांट दैट हैबिट बट आई एम अनेबल टू कल्टीवेट दैट हैबिट। सो इवन देन आई एम सेइंग कि रीडिंग विल हेल्प यू, तो यार फिर तो बात मान ही लो, रीडिंग पक्का हेल्प करता है। ओके, जितना होता है रीड करो। सो आई थिंक मैं अभी थोड़ा से क्वेश्चंस ले लेता हूँ। अभी कुछ टाइप मत करो 1 मिनट के लिए, मैं ना ऊपर ऊपर थोड़ा सा जाता हूँ और देखता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगर मिस हो गए हो तो। मॉक्स कितने टाइम के गैप में देना चाहिए अगर कल से स्टार्ट किया हो तो? मैंने शायद बताया था तुमको, पता है कि नहीं पता नहीं, मैंने रिवर्स में कैलकुलेट किया था। 14 मार्च को एग्जाम था तो आई आई कैलकुलेटेड कि बिफोर दैट आई वांटेड टू गिव 4-5 मॉक्स कंसेक्यूटिवली, देन 1-2 दिन का गैप फिर मॉक, 1-2 दिन का गैप फिर मॉक। ओके, सो ऐसे रिवर्स में मैंने कैलकुलेट किए थे एंड आई स्टार्टेड बिकॉज़ आई डिड नॉट अगेन सेम लॉजिक, आई डिड नॉट वांट टू एग्जॉस्ट ऑल द मॉक्स इन द बिगिनिंग, फिर ऐसे ही बैठे रहो तो करेंगे क्या? सो मॉक का फ्रीक्वेंसी स्टार्टिंग में थोड़ा सा कम था एंड देन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होता है एवरी अल्टरनेट डे, फिर कभी कभी साथ में कंसेक्यूटिव डेज, फिर 1 दिन का गैप, फिर 2 मॉक, फिर 1 दिन का गैप, समथिंग लाइक दैट यू कैन ट्राई। ओके, सो you need to prepare a sort of a timetable. It does not necessarily have to be एकदम structured timetable right now कि इस दिन को इस ये मॉक देना ही है, but at least have a number कि लास्ट 15 डेज में अगर तुमको 10 मॉक देना है तो अगर 40 मॉक का तुम्हारे पास पैकेज है, 10 मॉक निकल गए, 30 मॉक बचे। फेब्रुअरी में 28 डेज है, सो मे बी तुम उसमें से 20 मॉक्स दे रहे हो। ओके, बीच में एक एक दो दो दिन का गैप अगर बीच में डालना है तो उसमें से मॉक्स के नंबर निकाल दो, देन जनवरी में डिस्ट्रीब्यूट करो बाकी के मॉक्स, बिकॉज इन राइट नाउ इन द बिगिनिंग यू विल बी फोकसिंग मोर ऑन द सिलेबस। अगर सिलेबस पूरा का पूरा क्लियर है तो तुम्हारे ऊपर है, चाहिए तो जितना मॉक्स देना है दे सकते हो। वर्ड पावर मेड इजी, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट इट पायल, बट मैंने ट्राई नहीं किया है, मैंने ट्राई नहीं किया है वो बुक। ओके, तो आई कैन नॉट सजेस्ट कि मेरे एक्सपीरियंस में अच्छा है कि नहीं, बट काफी लोग बोलते हैं, काफी सजेशन भी आए थे मेरे को कि ये बुक पढ़ो, ये बुक पढ़ो, तो इट इज गुड, यू कैन ट्राई इट इफ यू वांट। व्हाट शुड बी आइडियल टाइम फॉर VARC? आई वुड सॉल्व इट इन 20 to 25 मिनट्स। 50 को अटेम्प्ट हो जाते थे। आरसी ऑब्वियसली एक्सक्लूड कर रहा हूँ मैं, तो बट सेम लॉजिक थोड़ा याद रखना कि क्वेश्चन एटलीस्ट देख लेने का और फिर स्किप करने का चाहिए तो ओके। तो 20 to 25 मिनट्स में मेरा आरसी अटेम्प्ट हो जाता था, एकदम फटाफट फटाफट करना पड़ता है, लेकिन उसमें यू डोंट हैव इवन 1 मिनट का फ्री टाइम। लाइक क्वांट में अगर तुम थोड़ा सा थक गए हो तो एक थोड़ा सा ऊपर देख लिया, ऐसे थोड़ा स्ट्रेच कर लिया,
मे बी यू आर एबल टू अफोर्ड दैट। वर्बल अगर तुम, मैं तो लास्ट में रखता था, तो लास्ट 20 मिनट्स तो एकदम अच्छे से करना ही पड़ता था मेरे को वर्बल। Mariam, I gave 45 mocks total. Which mock is best except CT King? Honestly, I did not try any other mock. मतलब लोग बोलते तो है काफी कि ये मॉक लो वो मॉक लो, मैंने ट्राई नहीं किया है, तो आई डोंट वांट टू एंडोर्स अ मॉक व्हिच आई हैव नेवर ट्राइड। एंड सीटिंग का मैंने कोई सीटी का अटेम्प्ट भी नहीं किया है पहले, तो मैंने यही एक मॉक यूज किया है और मेरे लिए काम कर दिया है, इज ऑल आई कैन से। होल बीएआरसी और एक्सक्लूडिंग आरसी? एक्सक्लूडिंग आई थिंक। आर यू आर आस्किंग अबाउट द टाइम आई थिंक। तो 25 मिनट्स में एक्सक्लूडिंग आरसी के कुछ क्वेश्चंस, आरसी लेकिन मैं सिलेक्ट कर पाता था अच्छे से थोड़ा सा रीड करके क्वेश्चंस। सो फॉर एवरी क्वेश्चन एटलीस्ट 5-6 सेकंड्स यू कैन कंसिडर मैं देता था। एंड अगर सॉल्वेबल है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम, नहीं सॉल्वेबल है तो छोड़ देता था मैं, एटलीस्ट मतलब मार्क करके स्किप करता था। Work from home, so what I had was I had to give time, but in a what you say lump sum, ऐसा नहीं था कि पूरा दिन बैठ के करना था ऐसा कुछ। I had to give staggered time. So मैं जब भी ब्रेक ले रहा हूँ तो 10-15 मिनट 10-15 मिनट ऐसे दे सकता था, मेरा काम ऐसे टाइप का था। ओके, तो कभी शाम को एक आधा घंटा दे दिया, ऐसे कुछ भी मैं कर सकता था। आई वॉज हैविंग दैट फ्रीडम, सो दैट इज हाउ आई थिंक मैनेज आई मैनेज्ड। मोस्ट चैलेंजिंग थिंग इन वीआरसी, आई थिंक एक तो आरसी स्किप करना, मतलब हैविंग दैट गट्स टू स्किप सो मेनी क्वेश्चंस एट वंस, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। ओके, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वो दैट इज important. मतलब आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू स्किप आरसी, इट कुड बी एनीथिंग फॉर एनी सेक्शन। इफ यू आर कीपिंग इन माइंड कि ये पार्ट मेरे को स्किप करना है, इट इज अ वेरी बिग डिसीजन। ओके, तो वो डिफिकल्ट होता है। एंड इफ यू आस्क टॉपिक वाइज, तो आई थिंक पैरा जंबल्स मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाता था बिकॉज देयर वाज अ लॉट टू रीड टू आंसर। एंड जो समरी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ना कि एक पैराग्राफ पढ़ के उसका समरी सिलेक्ट करना है, तो these sort of questions which were time consuming, that is why they were difficult because I gave 20 minutes है, 20 मिनट्स में मैं कहाँ इतना सारा अच्छे से रीड करूँ समझूँ और फिर सिलेक्ट करूँ, राइट? So that is why I had my limitations in that. Guys, privately मत भेजो chat, public भेजो, so everyone को भेजो, can read your questions. बट अभी तो टाइम कम हो गया है, तो आरसी ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट करना बेटर होगा, लाइक अपार्ट फ्रॉम वंस वी कैन अटेम्प्ट। आई वुड नॉट सजेस्ट एनीवन टू स्किप एंटायर सेक्शन, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि सीईटी का पेपर इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। सो ऑन डी डे इट माइट हैपन कि तुम जो रेडी करके गए हो वो बहुत डिफिकल्ट आ गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट पजल्स है, अगर फॉर एग्जांपल, मतलब होता नहीं है जनरली लोगों का, बट इफ इट इज पजल्स एंड you are very confident, but they have purposely asked very difficult time consuming questions in puzzles, तो तुम थोड़ी ना पूरा 1 घंटा 20 मिनट बैठ के सिर्फ पजल करोगे, तब तुमको डिसीजन लेना पड़ेगा कि पजल स्किप करना है मेरे को सारे। तो एट दैट टाइम आरसी को टाइम मिल रहा है तो आरसी करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज व्हाई आई नेवर सजेस्ट एनीवन राइट नाउ, एटलीस्ट यार अभी तो दिसंबर खत्म हुआ है, जनवरी फरवरी है और आधा मार्च है। सो यू हैव एंटायर जनवरी फरवरी टू वर्क ऑन योर वीक टॉपिक्स। सो ऐसे मत करना कि अभी से डिसाइड कर लिया कि स्किप करना ही है सब कुछ। ओके, how much month required to crack CT, Rishi? Um, I started in January and I cracked it. So at least for I can say कि 2.5 महीने में तो हो सकता है, अगर मैं कर सकता हूँ तो यार कोई भी कर ही देगा। तो 2.5 महीना तो एटलीस्ट है। There are people I have heard of who have done it even in a lesser time. So it is possible right now also if you start. Grammar section, it was constant practice for me. I learned a lot of things while solving, while analyzing, and I would remember them. मतलब ग्रामर मेरे लिए बहुत बड़ा सिलेबस नहीं था सीखने के लिए, honestly, and so sort of 60 to 70% grammar I was very well versed with. So the remaining part I had to learn, and
वो स्किल डेवलप करने के लिए आई वाज जस्ट सॉल्विंग द मॉक्स, दैट हेल्प मी वेरी वेल. Ideal strategy for VRC for the person who is leaving whole quant and DI section option. Raj, I would reiterate the same point. पूरा का पूरा अभी के अभी मत छोड़ दो. सब कुछ करो. हो सकता है कि तुम्हारे टाइम क्वांट बहुत इजी आ गया और तुम 40 अगर अच्छा टाइम दिया और डिसाइड किया कि चलो वर्बल छोड़ देंगे. सो बी फ्लेक्सिबल. राइट नाउ डोंट डिसाइड कि ये पूरा स्किप करना ही है. How much spend time on CET preparation? मतलब how much time did I spend on CET preparation? Daily I would give 10 to 12 hours every day. Ideal strategy for VRC question वापस पूछा. If I start CET preparation from today, can I crack? Because I am at zero level now. I was at zero level on 5th January. So you are still 5 6 days ahead of me. Okay. So Rahul, don't worry. If you even if you start today itself, if you give full commitment, you can do it. How you do motion analysis? A good question. That is good question. So when I say that I leave RC, I would solve it properly, thoroughly when I was analyzing. क्योंकि लॉजिक सेम था. व्हाट इफ मेरे टाइम आरसी बहुत इजी आ गया मेरे मेरे को और वर्बल के बाकी क्वेश्चंस डिफिकल्ट आ गए, तो आई हैड टू बी प्रिपेयर्ड विद आरसी. सेकंड थॉट वाज आरसी के कुछ कुछ पैराग्राफ, क्या पता वो के वही के वही उठा के उन्होंने क्लोज डाल दिया कभी तो, या फिर उसमें से कोई मीनिंग नया मिल गया, उसमें से कुछ नया सेंटेंस मिल गया, ग्रामर सीखने को मिला नया सा. मतलब ऐसा नहीं करना यार तुम लोग की आज ग्रामर सीखने बैठते हैं तो 10 क्वेश्चन ग्रामर वाले ही ढूंढे. रीडिंग विल आल्सो हेल्प यू इम्प्रूव योर ग्रामर. ओके. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि तुम सेंटेंस फॉर्मेशन कैसे करते हो एंड राइटर ने सेंटेंस फॉर्मेशन कैसा किया है. दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड कि तुम्हारा ग्रामर कितना वीक है एंड राइटर का ऑब्वियसली स्ट्रांग होना चाहिए हमारे से. तो यू अंडरस्टैंड कि वो ब्रिज जो है, हाउ टू हाउ टू कवर दैट गैप. ओके. सो in that is why in whenever you are going through entire VARC section, you have to keep an eye open for everything. कहीं से भी तुमको ग्रामर सीखने मिल सकता है, कहीं से भी सिनोनिम सीखने मिल सकता है. Okay, that is how I would analyze the paper, and I would try to read more about whatever interesting things came up in the entire VRC section. Articles ढूंढता था, उसके बारे में read करता था, and more of it actually was. कभी कभी क्या होता है कि मैच द कॉलम्स वाले भी जो क्वेश्चंस होते हैं, इवन दोज आई वुड कॉपी पेस्ट पूरा जो पूरा क्वेश्चन हो ना वो कॉपी पेस्ट करके मैं डालता था और उसके रिलेटेड आर्टिकल मिल जाता था. तो sometimes what will happen is match the column, like I gave an example जिसमें they were very much different options. What if they are all similar options and it is very confusing? So for that what I did, I would copy paste and search for that article. कहीं ना कहीं से तो आर्टिकल लिया ही होता है लोगों ने. Okay, this will happen in your mocks, this will happen in your main CET exam also. So वो पूरा रीड करके ना आइडिया आता है और कि अच्छा ये आर्टिकल एक तो समथिंग आई रिमेम्बर कुछ तो मरीन रिलेटेड था, सम एक्वा लाइफ और ऐसा ऐसा कुछ तो था. आई डोंट रिमेम्बर प्रॉपर्ली बट कुछ तो था ऐसे, और बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा था मेरे को. तो मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल रीड किया और मेरे को सब क्लियर हो गया कि कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन था एंड कैसे दिस विल हेल्प यू इन समरी फॉर्मेशन इन पैरा जंबल्स एवरीवेयर कि इन लोगों ने कैसे सेंटेंसेस बनाए हैं. स्टार्ट एक स्टोरी होता है ना हर एक आर्टिकल, स्टार्ट कहाँ से हो रहा है एंड कहाँ पर हो रहा है. it helps you in building that sort of a logic in your mind that paragraph formation ऐसे होते हैं, jumbles कभी आ गए तो you will understand कि ये sentence शायद start होना चाहिए, ये sentence शायद end होना चाहिए, इसको ये connect कर रहा है, उसको वो connect कर रहा है. These things you should not just learn from that particular question. Keep an eye open. कहीं से भी ये सब सीखने को मिल सकता है. Okay. Sagar, I started with mocks directly and then I covered the syllabus simultaneously. Based on new pattern, see, honestly speaking, Sanket, I was giving 20 minutes to verbal and I was scoring 30s में. Okay, so even if 20 30 वाला number पकड़ूं, so even in 2 hours you can give 20 minutes at least for verbal, and if you score 30, that is a good score. Okay, that is what I would keep in mind for myself right now also. अगर मैं exam दे रहा हूँ तो. Starting mock numbers मतलब सुरभि, आर यू आस्किंग माई मार्क्स? तो मैंने फर्स्ट मॉक में शायद 95 स्कोर किया था. आई स्कोर्ड इन 90s फॉर अ वाइल.
and gradually improved my score. रोमन, तुक्का मारना स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं यार, वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। मेरा लॉजिक था कि मेरे को तो वो इंट्यूशन डेवलप करना था तुक्का मारने वाला। तो आई स्टार्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, बट आई वाज ऑलवेज ऑनेस्ट टू माई सेल्फ कि ये वाले क्वेश्चंस तुक्के मार के आए हैं, तो ये आई विल नॉट कंसिडर कि मेरा मार्क्स है, ये स्कोर है मेरा, ऐसा नहीं करता था मैं। ओके, तो ऐसा मत करना कि कल तुमने तुक्के मार के 120 ला दिया तो हो गया जेबी से। व्हाट इफ उसमें से 60 तुम्हारा तुक्का है, तो यू आर स्टिल एट 60, यू हैव टू बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। व्हाट चैप्टर्स यू प्रिपेयर डेली? सो कुछ सिनोनिम्स एंटोनिम्स मैं रोज देख लेता था। रीडिंग थोड़ा बहुत रोज का कर देता था, कुछ आर्टिकल्स न्यूज़ के। पजल्स आई वुड सॉल्व एवरी डे, 4 5 पजल्स एटलीस्ट ऑफ ऑल different types, whatever I could get, difficulty level and everything, considering that all of that, I would solve puzzles. एंड हाँ, बस आई थिंक इतना चीज़ था। क्वांट का अगर कुछ हो सकता है तो मैं एवरीडे कर देता था। ये ऐसी चीज़ें हैं कि तुम एवरीडे प्रैक्टिस करोगा, तो दैट इज़ व्हाई आई वुड डू दैट एवरीडे। Would you explain the strategy time wise for each section? For new pattern, I think मैंने थोड़ा सा सजेस्ट किया कि मैं क्या करता, 10 मिनट एब्स्ट्रैक्ट को दे देता, 50 मिनट्स आई वुड गिव फॉर लॉजिक, एंड 30 for quant and verbal, and this is especially for those who are starting right now, so that तुम इसमें कितना स्कोर करे हो देखो, एंड फिर उसके हिसाब से तुम्हारे तुम्हारे इंडिविजुअल के हिसाब से यू चेंज द टाइमिंग्स फॉर ईच सेक्शन। किसी में अच्छा स्कोर आ रहा है, कम टाइम में हो रहा है, तो उसको कर दो टाइम, दूसरे को ज्यादा दे दो। Ideal time in mock in all section. Uh, Ideal time matter differs from person to person. Again, same logic. एक कुछ तो पकड़ के तुम स्टार्ट करो खाली बस, दैट इज व्हाट मैटर्स, एंड फिर तुमको चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। कैन यू प्लीज टेल द एप्लीकेशन प्रोसेस व्हिच इज नाउ गोइंग ऑन, एंड हाउ कैन वी अप्लाई एंड ऑल दैट? कौन सा एप्लीकेशन? एमबीए का? वो क्यों टेंशन ले रहे हो भाई, तुम्हारा हो गया है क्या क्लियर सब? आइडल टाइम इन मॉक हो गया। व्हाट वाज योर एवरेज मॉक स्कोर इन फेब? In Feb, I think I was scoring average 135, 140, 135, 140 आ जाता था। अक्षय, मैंने शायद स्ट्रैटेजी मेरा शेयर कर दिया, एटलीस्ट बिगिनिंग वाला स्ट्रैटेजी, फिर चेंज करना है, सबको करना ही पड़ेगा वो तो। सौरभ, आई डिड इट ऑन माय ओन। मैंने कोई कोचिंग कुछ ज्वाइन नहीं किया था। मैंने रिसोर्सेज जो भी चाहिए तो गूगल सब दे देता था मेरे को। तो थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ता है, थोड़ा सा हंट करना पड़ता है फॉर द करेक्ट रिसोर्सेज दैट यू वांट। हो जाता था लेकिन। एब्स्ट्रैक्ट डेली यार, एब्स्ट्रैक्ट तो बहुत कम क्वेश्चंस होते हैं वैसे भी तो। हाँ, स्टार्टिंग में एटलीस्ट डेली, देन आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद एब्स्ट्रैक्ट, तो आई वाज नॉट डूइंग इट एवरी डे। जब मॉक कर रहा हूँ तब तो कर ही रहा हूँ। दिनेश, हाउ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग वर्बल इफ आई डोंट इवन नो द बेसिक्स ऑफ वर्बल? अच्छा, एक ट्रिक मैं बताता हूँ तुमको, शायद हेल्प करेगा ये। मैंने अभी सीईटी के लिए नहीं, बहुत पहले चालू किया था, आई थिंक ड्यूरिंग इंजीनियरिंग। आई नो फॉर श्योर 99% ऑफ यू चैट अ लॉट, किसी ना किसी से चैट कर रहे हो। डोंट यूज शॉर्टकट्स। Okay, this reminded me actually. दिनेश ने जैसे लिखा ना, नो, KNW, you are not going to achieve anything by saving that O का time. So make sure that whenever you are chatting, you chat with proper grammar, okay, with full words. It actually is very useful when you are going to after cracking CET तो छोड़ो यार, कुछ basic तुम job कर रहे हो ना, उसमें भी you cannot talk like this with some professional. So you have to use proper English at that time. वन सजेशन वुड बी कि आज से तुम चैटिंग कर रहे हो कहीं पर भी, यहाँ से इवन डोंट, अगर डोंट वोंट ऐसा लिख रहे हो तो DON apostrophe फिर T लिखो। ओके, मेक श्योर दैट यू आर डूइंग, यू आर फॉलोइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स।
inculcate a habit जिसमें तुम कर रहे हो, and that will help you in understanding more grammar. अक्षय, मेरे हिसाब से आई थिंक कट ऑफ वुड बी अराउंड, आई थिंक कट ऑफ से ज़्यादा आई वुड फोकस ऑन द स्कोर दैट आई वुड हैव वांटेड, व्हिच वाज अराउंड 120 125 एट लीस्ट. ओके, सो मैं ये नहीं देखता कि 112 पे कट ऑफ हो रहा है तो 113 लाऊंगा तो मैं कंफर्टेबल हूँ. आई विल सी कि 125 तक मेरा स्कोर हो. ओके, तो आई थिंक कट ऑफ से ज़्यादा बड़ा फैक्टर, इफ यू आर very much sure of the fact that you want to crack only JB और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, you have to look at top level वाला marks, don't look at the bottom level वाला marks. Okay, 120 मिनट्स में कितना अटेम्प्ट कर सकता हूँ, आई डोंट नो एक्चुअली. देखा जाए तो लास्ट के 30 मिनट्स बाकी है ना, सो बाय दैट लॉजिक आई थिंक 150 क्वेश्चन में अटेम्प्ट कर लेता था. आई हैड ऑलवेज केप्ट फॉर वर्बल. वन लास्ट के 30 पूरे तो नहीं दे पाता था, आई वाज गिविंग अराउंड 20-25, तो 145 to 150 questions I was attempting in 120 minutes. So if one person can do it, others can also do it. And 150 में से if you are able to score 125 something, that will be a very good score. Okay. देखा जाए तो मैं अगर वर्बल का मार्क्स निकाल दूं, मेरा 30 मार्क्स, एंड 150 अगर मैं स्कोर करता हूँ 130 उसमें से निकाल दूं तो 120 तो आ ही गया, राइट? How to improve finding odd man out in number series? I'm not able to get more than 2 right out of 5. Um, Basically practice. In practice you have to understand कि तुम्हारा तुमको right answer क्यों नहीं मिल रहा है. मतलब यार, abstract is very easy if you understand the logic behind each question. And logic is limited in number. N number of logics नहीं बना सकते वो लोग, कुछ तो limited number होंगे, थोड़ा सा tweak करेंगे यहाँ से वहाँ, variations होंगे. So you have to, if you are unable to understand ऑड मैन आउट, देन अंडर तो समझो कि तुम्हारे हिसाब से जो ऑड मैन आउट था वो क्यों था, एंड एक्चुअल में जो आंसर है वो क्यों है. अंडरस्टैंड द डिफरेंस एंड देन लर्न कि अच्छा मेरा थिंकिंग शायद रॉन्ग है, मेरे को ये वाला राइट आंसर सिलेक्ट करना है. एंड सी टू इट दैट नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर फेसिंग सिमिलर क्वेश्चन, यू रिमेंबर दैट लॉजिक कि लास्ट टाइम मैंने मिस्टेक किया था, बट मेरे को पता है कि ऐसा लॉजिक, करेक्ट लॉजिक क्या है. दैट विल हेल्प यू. ओके. हाउ आई कनेक्ट विथ यू? You can connect with me on LinkedIn, not an issue. काफी लोग कनेक्टेड है ही वैसे भी. यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन लिंक्डइन. एनोनिमस सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और सिनोनिम्स होता है अक्षय. यार ऐसा कैसे होगा? सो एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स आई वाज डूइंग मॉक्स वगैरह से ही करता था, टॉपिक टेस्ट दे देता था. एंड और ज्यादा रीड करना हो तो आई वाज यूजिंग गूगल. गूगल पे सर्च करने का सब मिल जाता है. तुम्हारे पास, आई एम श्योर इफ यू हैव जॉइंड कोचिंग यू विल बी हैविंग अ लॉट ऑफ मटेरियल्स दैट यू कैन यूज, so please use all those materials. ओके, एनी मोर वर्बल के रिलेटेड और कोई डाउट है? केशव, कॉलेजेस में कैसे अप्लाई करना है यू आर आस्किंग? डीटी का वेबसाइट देखो, सीईटी सेल का वेबसाइट देखो, इतना सारा इन्फॉर्मेशन तो है उस पे. तुमको फॉर्म भरना पड़ेगा सब. आई थिंक रजिस्ट्रेशन तो खत्म भी हो गया आज. Max time given to verbal. See, max time for any section will depend on how well you are in that section. So मेरे को पता था कि vocab वगैरह हो जाएगा, आरसी में मैं टाइम वेस्ट करने वाला हूँ. सो आई न्यू दैट vocab अच्छे से कवर हो जाए ना, उतना टाइम तो एटलीस्ट देना ही है. दैट इज व्हाई फॉर मी इट वाज 20 to 25 मिनट्स मैक्स हो जाता था उतने में कवर. एंड बिकॉज आई पुश्ड माई सेल्फ, नहीं है कैसे भी, आई वाज एबल टू फाइंड वेज जिससे मैं सॉल्व कर पाता था. Your score is stagnant at 105. You all will face this, that your score will get stagnant at a particular number. वो रेंज से आगे नहीं जा पाएगा.
तो एट दैट टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पर तुम्हारा इशू है. आर यू गिविंग are you wasting time in some type of questions or in a section, or are you not able to attempt the questions which you can solve easily? कोई एक दो टाइप के क्वेश्चन में अगर टाइम ज्यादा स्पेंड कर रहे हो तो मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ना स्पेंड करो. इसीलिए थरो एनालिसिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. ओके, यू हैव टू एनालाइज टाइम वर्सेस ईच एंड एवरी क्वेश्चन, ईच एंड एवरी टॉपिक. तो जिसमें भी टाइम वेस्ट हो रहा है, मेक श्योर कि उसमें टाइम वेस्ट ना हो नेक्स्ट टाइम. अगर उसको सॉल्व करने का टाइम कम कर सकते हो तो करो. If you want, you can try skipping that type of question. You can try all the strategies and something will work. Okay. Sagar, in the beginning, I was spending around 2 days also for each mock because was simultaneously studying also, covering the syllabus. And I brought this down gradually to around 4-5 hours at least. 4-5 hours जाते थे मेरे end में analyze करने के time. टाइप ऑफ लॉजिक इन एब्स्ट्रैक्ट, यार ये तो तुम कोई भी एब्स्ट्रैक्ट का क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें मिल जाएगा, है ना. व्हेन यू आर सॉल्विंग मॉक, यू आर सॉल्विंग 25 क्वेश्चंस, एटलीस्ट उसमें 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं. एंड 5 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस तुम सॉल्व कर रहे हो, जब उसके सॉल्यूशंस देखोगे अगर रॉन्ग हो रहा है तो यू विल अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड देम. ओके, और कोई डाउट्स गाइस? पूछ लो 5-6 मिनट में है, उसके बाद बंद कर देते हैं सेशन. यू कैन कैरी ऑन विद एल्स. डिड यू सॉल्व only questions from test or solve CET King book for all subject, because different topic wise tests are, I think, not designed for CET. Those are really difficult question. See, what I purchased, I got topic wise tests. So मतलब not necessarily कि हर एक टॉपिक का एक एक, बट काफी सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस थे उसमें. तो जो भी टॉपिक का क्वेश्चन, मतलब जो भी टॉपिक का अवेलेबल है टॉपिक टेस्ट, आई वाज सॉल्विंग देम. इफ इट इज नॉट अवेलेबल, कोई ऐसे टॉपिक्स ऑब्वियसली थे जिसमें जिसके लिए ऐसे टॉपिक टेस्ट नहीं थे, आई हैड टू यूज अदर रिसोर्सेज. गूगल पे सर्च करने का, बैंक के एग्जाम्स वाले बहुत सारे ऐसे अलग अलग वेबसाइट्स होते हैं, यू विल गेट क्वेश्चंस फ्रॉम देम. यू हैव टू सॉल्व देम, दैट विल हेल्प. एवरी टॉपिक हैज 3 लेवल टेस्ट. सो मैंने इसीलिए ना हर एक टेस्ट नहीं सॉल्व किया था. मैं ना लेवल वाइज देख लेता था, अगर लेवल दिख रहा है तो मेरे को, या फिर मैं क्वेश्चन टाइप ऐसे देख लेता था. मेरे को इतना तो अभी तक एक्चुअली याद नहीं है ऑनेस्टली कि कितने लेवल के थे ऐसे सब. बट इन केस यू हैव दैट शीट, मैंने उसमें कलर कोड करके सारा रखा था कि कितना सॉल्व किया है कितना नहीं. तो आई डोंट रिमेम्बर कि लेवल वाइज उसमें मार्क्ड था या नहीं, बट आई वाज सॉल्विंग एज मेनी टेस्ट एज आई could. Yes, after CET only you have to fill the college forms. CET आएगा, रिजल्ट आएगा, उसके बाद अगर हमारे जैसा किस्मत रहा तो तुम भी रुक जाना 6 महीना. अगर तुम्हारा किस्मत अच्छा है तो तुरंत हो जाएगा तुम्हारा एडमिशन प्रोसेस. If you guys want that sheet, I have provided a link for it on my LinkedIn profile. क्योंकि सब लोग मांग रहे थे ना, तो इट इज नॉट फिजिबल ऑनेस्टली कि मैं हर एक को शीट अलग से सेंड करूँ. तो मेरे लिंक्डइन प्रोफाइल में जो बायो होता है ना, उसमें मैंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है. तो वो कॉपी पेस्ट करके ब्राउजर में डालो, यू विल गेट द लिंक, यू विल गेट द शीट डायरेक्टली और डाउनलोड कर दो वहां से. टॉपिक की स्टार्टिंग कहाँ से कर देते हैं, इसका मतलब क्या होता है? डेली टाइम स्पेंड ऑन स्टडी एंड मॉक्स, आई मेंशन कि 10 to 12 मैं करता था. एंड उतना उतना मैं देता ही था एवरी डे. आई एम स्ट्रॉन्ग इन LR abstract. In quant I am average, but in verbal I can't score even 15. So अक्षय, डिपेंड करता है ना क्यों नहीं स्कोर कर पा रहे हो. आर यू नॉट गेटिंग इनफ टाइम? तो कहीं ना कहीं तुमको टाइम रिड्यूस करके वर्बल को ज्यादा अटेम्प्ट दो. ट्राई चेंजिंग योर ट्राई चेंजिंग योर स्ट्रेटेजीज, कौन सा सेक्शन कब अटेम्प्ट करना है. ओके, ये सारी चीजें ट्राई करो, समथिंग विल वर्क.
शेयर द लिंक, अरे वो ड्राइव का लिंक है, आई डोंट रिमेम्बर ऐसे पूरा, मेरे को वो ड्राइव वाइव ओपन करने का पड़ेगा। लिंक्डइन पे प्रोफाइल पे तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा, यू कैन कॉपी पेस्ट फ्रॉम देयर। मतलब वीडियो देख के सेक्शनल टेस्ट देते थे। वीडियो देख के तो नहीं, आई वाज नॉट हैविंग वीडियो वाला मटेरियल्स, आई वाज जस्ट हैविंग टेस्ट, टॉपिक टेस्ट जो भी होता है, कुछ तो नाम था वैसा, एसेंशियल्स या समथिंग समथिंग ऐसा कुछ तो नाम था वो पैकेज का, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट वीडियोस नहीं थे मेरे पास, सिर्फ टेस्ट थे, उसमें से ही करता था। डू यू फिनिश द सिलेबस व्हाइल गिविंग मॉक्स? यस, आई एक्चुअली डिड दैट ओनली। मॉक्स देते देते आई वाज साइमल्टेनियसली लर्निंग द टॉपिक्स एंड फिनिशिंग द सिलेबस। सो एवरी डे अगर मतलब आज अगर एक मॉक किया तो मैंने हर एक टाइप के क्वेश्चन एक बार तो कवर कर दिए, एंड एनालाइज करने के टाइम हर एक टाइप का क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आता, उसके चार पांच क्वेश्चन एटलीस्ट आई वुड सॉल्व। सो मैं वो टॉपिक साइमल्टेनियसली कवर कर रहा था। डिड यू इंडिविजुअली रीड द टॉपिक्स इंडिविजुअली? डिड यू इंडिविजुअली रीड द टॉपिक्स इंडिविजुअली मतलब सी आई वाज गिविंग द मॉक्स, उसमें टॉपिक्स में जो डिफिकल्ट लगा ना, जो नहीं आता, मेरा मिस्टेक्स हो रहा है और सम कॉन्सेप्ट व्हिच आई डोंट नो, आई वुड रीड दैट टॉपिक, आई वुड स्टडी अबाउट दैट, एंड देन आई वुड मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक मॉक्स में से ही एनालाइज करने के टाइम। यस यस ऐश्वर्या, करेक्ट। सो हर रोज मेरे काफी सारे टॉपिक्स के थोड़े 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 पार्ट कवर हो रहा था, तो आई डिड नॉट फॉलो कि सिलोजिज्म स्टार्ट किया एंड 0 to 100% कर दो फिर नेक्स्ट टॉपिक ऐसे करो। आई वाज डूइंग 5 10 5 10% ऐसे एवरी डे सबके लिए। क्वांट वर्बल में क्वांट दोनों के लिए प्रैक्टिस चाहिए एक्चुअली, हर एक के लिए प्रैक्टिस चाहिए, बट प्रैक्टिस द वे यू आर गोइंग टू प्रैक्टिस विल डिफर। बेसिक्स सीखो अच्छे से एंड ट्राई अटेम्प्टिंग इन लेस टाइम इन मोर with more accuracy, these things will help। क्वांट अगर नहीं आ रहा तो तो तुम बेसिक सीखो हर एक का अच्छे से, मैथ्स का कि वो कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल इंटरेस्ट सीखो, कंपाउंड इंटरेस्ट लाइक फॉर एग्जांपल। एंड वर्बल में नहीं आ रहा तो यार आज का पूरा सेशन वही था कि वर्बल कैसे इंप्रूव कर किया था मैंने। आई स्टार्टेड फ्रॉम जनवरी ऋषि मॉक्स देना। Okay, any more doubts regarding verbal? If not, then we can wrap this up so that you guys can carry on with your studies. मेरा तो हो गया, मेरे को पढ़ाई नहीं करना है। If you search for Keval Ajmeri, okay, KEVAL AJMERI, केवल अजमेरी, तो तुमको मिल जाएगा प्रोफाइल मेरा। Okay, so I think you guys don't have any doubts as such अभी के लिए तो at least. Don't worry, future में अगर doubts होंगे I in essay and we can sort everything out future in future also. Verbal का summary pointers. समरी पॉइंटर्स फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, आई गिव, मैं क्या करता था, मैं आरसी स्किप किया था स्टार्टिंग में, देन आई रियलाइज कि आरसी का हर एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होता, कुछ क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर सकते हो विदाउट रीडिंग आरसी, तो आई वाज सॉल्विंग दोज क्वेश्चंस। देन सिनोनिम्स वगैरह सीखने के लिए आई यूज्ड गूगल, आई यूज्ड टॉपिक वाइज टेस्ट जो भी होते हैं, देन बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन जो होते थे आई ट्राई टू सॉल्व देम इन लीस्ट टाइम। सो आई रियलाइज सम स्ट्रेटजीज, उसमें ट्रिक्स मिल गया मेरे को, जैसे मैच द कॉलम में हर एक देख, एक एक दो से तुम पेयर बना के भी ऑप्शन चेक कर सकते हो कि कौन सा करेक्ट है कौन सा नहीं, ऐसे कुछ ट्रिक्स देखे। वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग वुड बी कि हर एक क्वेश्चन स्किप, ऐसे जो भी स्किप कर रहे हो एटलीस्ट उसको 5 10 सेकंड दो और देखो कि क्या है, एंड अगर सॉल्व कर सकते हो विदाउट इवन वांटिंग टू अटेम्प्ट पूरा लॉजिक, मतलब आरसी का सेम, आरसी का अगर तुमको पूरा पढ़ना नहीं है और फिर भी अटेम्प्ट करना है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं वैसे, दिस स्ट्रेटजी शुड बी एक्सटेंडेड टू ऑल द सेक्शन, एब्स्ट्रैक्ट हो या क्वांट हो या लॉजिक हो, कुछ भी हो। अगर कुछ इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं, डोंट स्किप देम डायरेक्टली कि ये टॉपिक मेरे को पसंद नहीं है, इजी है तो सॉल्व कर देना। Develop personally try speaking in English, even if you are talking to your friends,
if you're possible, your family, whoever you're talking with, try to speak in English. When you're typing, chat कर रहे हो या कुछ कहीं पर भी type कर रहे हो, try to type full words with proper grammar, with comma, exclamation, everything, whatever it is. So use all the punctuations and everything properly with proper grammar. These things will help you in improving your vocabulary on your own. So next time, say, I would suggest when you are asking me questions over here, that also try कि पूरा इंग्लिश में लिखो अच्छे से विद फुल सेंटेंस फॉर्मेशन. आई नो थोड़ा कैजुअल है तो तुम हिंदी में लिख देते हो ऐसे सब. ऑब्वियसली आई डोंट माइंड दैट. ऐसा नहीं है कि मेरे को इंग्लिश पसंद है, बट सिंस प्रिपरेशन कर रहे हो तो दीज स्मॉल स्मॉल थिंग्स विल हेल्प यू. ओके, तो ट्राई करो ऐसे फॉलो करना. I'll accept all of your LinkedIn requests. मेरे को थोड़ा टाइम दो. जो भी बचे होंगे ना, मैं सारे सारे एक्सेप्ट करना चालू कर दूंगा. ओके. Okay, guys, I hope this session was useful to you. Let us wrap it up, and I'll see you next time with another topic. And hope you guys do well. अच्छे से पढ़ो and crack करो जो भी. Okay. चलो. Bye.